I now invite Dr. Prashant Jadhav to please come forward and give an introduction to our guest. Namaskar. Thank you, Dr. Naresh and Council, for giving me an opportunity to introduce today's honorable guest, who I personally know for more than 25 years. So it's my honor to introduce respected Dr. Bhagwatji Karad sir, Minister of State for Finance, Government of India. Well, मित्रांनो, you are fortunate that today you are going to witness a living legend, an example how a doctor can perform various duties and responsibilities in his life and how life should be lived. माननीय कराड सर यांचा जन्म हा लातूर जिल्ह्यातील चिखली या छोट्याशा गावात झाला. सुरुवातीच्या शालेय शिक्षणासाठी रोज साधारणतः 15 किलोमीटर पायपीट करून शालेय शिक्षण सरांनी पूर्ण केले. त्यांच्या या शालेय शिक्षणामध्ये त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांच्या वडिलांना ह्या मुलामधलं बुद्धिचातुर्य ओळखून याने अजून पुढे शिकलं पाहिजे सांगितल्यानंतर सर औरंगाबाद शहरात शिकायला आले. औरंगाबाद शहरामध्ये 11वी-12वी केल्याच्या नंतर त्यांच्या त्या मार्क्सच्या गुणांवरती सरांनी GMC औरंगाबादहून MBBS, त्यानंतर मुंबईला येऊन MS जनरल सर्जरी and yes FCPS general surgery. Then he completed MCH pediatric surgery. So in that period, he is the first pediatric surgeon of the Marathwada region. मित्रांनो, आत्ताच्या या युगात सुद्धा प्रत्येकाला शहरामध्ये स्थायिक व्हावं वाटतं. आदरणीय सरांना मुंबई, पुणे एवढंच काय अगदी भारतातले कुठल्याही शहरामध्ये स्थायिक होता आलं असतं. परंतु सरांचा स्वभाव आणि जिद्द, सरांनी संभाजीनगर म्हणजेच औरंगाबाद शहराला आपली कर्मभूमी म्हणून सुरुवात केली. Dr. Bakul Parikh sir is here. He knows what are the intricacies of the neonatal surgeries. Sir has performed tracheoesophageal fistula, intestinal anastomosis and difficult type of surgeries then in 80s, 90s in Aurangabad when there was not a NICU practice or intensive care practice was not there. And he used to perform more than 10 to 15 surgeries in a day. And that time, post-operatively, the babies used to require ambu bagging because the ventilator care was not there. Madam is a gynecologist. She used to help sir during all this process. And this all happening in the Karad hospital, which was a 50-bedded hospital. That is, I have seen that journey. I have been associated as a pediatrician in the latter period and supporting. So I know the efforts, the hard work. And while doing all this, म्हणजे सरांनी वैद्यकीय प्रॅक्टिस करता करता हळूहळू आपण समाजाचं काही देणं लागतो याच्या पुढच्या स्टेजला जाऊन समाजकारण आणि समाजकारणातून राजकारणात गेले. सर, आपण औरंगाबाद शहराचे नगरसेवक, उपमहापौर आणि महापौर 2 वेळा 2000 आणि 2006 या 2 टर्म महापौर पदाच्या सरांनी औरंगाबाद शहराच्या केल्या. I remember sir had that time started a hepatitis free Aurangabad campaign. And on one single day, few thousands of children were vaccinated with hepatitis B vaccine, and then I was one of the simple contributor in that campaign. So even though he is into the social or political, he is a doctor at heart. Later on, sir had become the Adhyaksha of Marathwada Vaidanik Vikas Mahamandal, in which he has done a lot of work for the region, Marathwada region. आणि त्यानंतर त्यांचं ह्या सगळ्या कर्तृत्व बाकीच्या गोष्टी बघून देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी 2020मध्ये सरांना बोलवून घेऊन ही बिकेम राज्यसभा मेंबर, खासदार फ्रॉम महाराष्ट्र. आणि immediately within 1 year of his tenure, he was elevated as a Minister of State and was given Ministry of Finance. This is a rarest of the rare example where someone has been made minister in the first tenure within 1 year. That was all because of his dedication
in various committees, whichever were given to him, like petroleum and others. And even though he is working as a Minister of Finance, I have seen him working so hard, getting up in the morning, learning the new technologies. We doctors, we know what is pulse, BP, heart rate, but he started reading GDP, per capita income, and all those things at this junct. And he's been one of the best minister who has been performing his duties. But as I said, once doctor is always a doctor. I will narrate you two incidences. Once he was in a flight, moving as a minister. One of the co-passenger had a medical problem. Forgetting all protocol, he went to the rescue of that passenger. That was well appreciated even by the Honorable Prime Minister. And at one event, like the gathering like this, one of the reporter had collapsed. He came up from the stage, resuscitated that guy who survived because of a doctor in Dr. Karat, sir. Even now, sir has been instrumental in getting 500-bedded hospital to Aurangabad town. So he tries very hard. How can he contribute to the medical fraternity? Along with that, he has been a content family member. All his three sons are doing well. One is in politics and two are in entrepreneur. So my friends, looking at all these, the achievements of Dr. Karat sir, we as a CPS council member thought that he is the example in front of you who can guide you on this very important day of your life. Like, a well accomplished doctor, family person, entrepreneur, politician, and administrator. And my friends, above all, a CPS alumni. I'll complete my introduction with one thing. If you see sir's biodata on Wikipedia or anywhere, he mentions his alma mater as 3 institutes. Baba Saheb Ambedkar Vidyapit, Dr. Baba Saheb Ambedkar Vidyapit, Marathwada, Mumbai University, and College of Physicians and Surgeons. So my friends, I'm honored and I request Dr. Karat sir to give his speech and address of today's convocation in front of you. Thank you, sir. Before I invite our chief guest for addressing the gathering, I would request our president, Dr. Girish Mahendrakar, and the office bearers to please felicitate Dr. Karat sir and present him with the memento from CPS. Thank you, sir. Today, on occasion of 153 convocation of CPS College of Physicians and Surgeons, the President of the CPS, Dr. Girish K. Mahendrakar, Vice President, Dr. Kavita Ji Mahendrakar, Vice President, Dr. Ajay D. Sambre, Registrar Dr. Rajesh V. Darade,
Dr. M.J. Jasawala, Controller of Examinations, Dr. Naresh Alreja, Deputy Registrar, Dr. Prashant Jadhav, a renowned pediatrician, ex-Vice President and Trustee of CPS, Dr. Pradeep Patil, who is my friend and colleague from Sambhajnagar, Dr. Sandeep Bhajibakre, all the dignitaries on the dais, all the dignitaries of the dais, and dear doctor friends, आज मैं बहुत ही खुश हूँ जिस इंस्टीट्यूशंस में से मुझे डिग्री मिली, जिसके माध्यम से मैं समाज में जाके प्रैक्टिस करता था, उस इंस्टीट्यूशन में एक गेस्ट बोल के आपके जैसे नए डॉक्टरों को मैं आज डिग्री देने के लिए और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी को पता है सीपीएस इंस्टीट्यूशन 1912 यानी 110 साल पहले शुरुआत हो गई है, और अगर उसी टाइम का हम वक्त देखें तो डॉक्टर्स बहुत ही कम थे। पर्टिकुलरली एमबीबीएस डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं थे। हॉस्पिटल्स थे लेकिन टीचिंग फैसिलिटी नहीं थी, टीचिंग फैकल्टी नहीं थी। तो मुंबई के कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स इकट्ठा आके उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन चालू की, और जिसका रिकग्निशन लंदन में से होता था और उसका फंक्शन भी यहाँ होता था। मुझे पता है, मैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर से होंगे ना, कुछ बाहर से है क्या? अदर दैन मराठी, हाथ ऊपर करो, कौन कौन है? बहुत सारे हैं। चलो, आई एम हैप्पी। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस और एमएस होने के बाद एमसीएच जो केईएम हॉस्पिटल सामने है, तो आई वाज स्टूडेंट ऑफ केईएम हॉस्पिटल। और उसी वक्त हमारे जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे तो डॉक्टर आर के गांधी थे। डॉक्टर आर के गांधी एंड डॉक्टर मिसेस एस देशमुख, ये दोनों ही हमारे प्रोफेसर थे, और बोथ वेर वेरी वेल अटैच टू दिस कॉलेज। Dr. R.K. Gandhi, Dr. Mahindra ji, he was also a president of this institution for some time, and he has also spent some life for improvement of this institution also. और उसी वक्त जब मैं 82, 83, 84 की बात कर रहा हूँ, आप लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे, ऑल आर यंग पीपल, लेकिन उसी वक्त मैं स्टूडेंट था। मैं एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी करता था और इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड था, और यहाँ आके मैंने बहुत सारे क्लिनिकल डिस्कशंस हो, कुछ सीनियर टीचर के फैकल्टी मेंबर के लेक्चर्स भी मैंने अटेंड किया है। और मुझे जब मैं एंट्री कर रहा था तो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट से बता रहा था, अभी तक मैं इस इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट बोल के आता था, लेकिन उसके बाद मैं आज आपके सामने गेस्ट बोल के आ रहा हूँ, तो मैं बहुत ही आनंदी हूँ। ऐसा मैं एंट्री करते ही बताया। आप सभी को पता है, भारत एक आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लास्ट ईयर में मनाया गया। 2022 साल में हमें 75 साल हो गए आज़ादी होके मिलके, और 2023 में से हमने आज़ादी का अमृत काल प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया। यानी 2023 से 2047 तक ये 25 साल ये अमृत काल है भारत के लिए, और हर क्षेत्र में हमें डेवलपमेंट करना है।
और हम सभी लोग इस हॉल में जो बैठे हैं, बाजी बकरी साहब के, ऑल्दो यू आर अ पुलिस ऑफिसर बट यू आर अ डॉक्टर, तो हम सभी लोग, आई एम द मिनिस्टर लेकिन मैं भी डॉक्टर हूँ, तो हम सभी लोग को मिलके हमारे हेल्थ के बारे में सोचना है। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सब लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास कितने भी वेल्थ हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हेल्थ इज़ अ सुप्रीम, सबसे पहले हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, और हम सभी लोग हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में भी काम करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा 1947 में, इस देश में सिर्फ 19 मेडिकल कॉलेज थे, 19, उसमें से जे और केएम भी होगा। लेकिन 2014 तक ये समझो एक 70 साल में 347 मेडिकल कॉलेज बन गए। 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बोल के शपथ ली, और ये हेल्थ सेक्टर सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत ही अलग अलग स्टेप्स लिया है। उसमें एक अगर कोई होंगी तो यहाँ भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलो। तो अभी अगर हम मेडिकल कॉलेज का नंबर लें तो देर आर 647 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। अभी तक सिर्फ 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस थे, 7 ही मेडिकल इंस्टीट्यूट थे। लेकिन अभी भारत में 22 एम्स खुले हैं, 22 एम्स, और हर एक स्टेट में एक एम्स हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र को भी एम्स मिला है, जो नागपुर में काम चालू है या नागपुर में इनोग्रेशन होगा। तो इतना ही नहीं, तो आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। पिछले 2 साल से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और यूक्रेन में हमारे 22,000 इंडियंस जो वॉर में फंसे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया, ये 22,000 लोगों को इधर लाना है। दोनों हेड ऑफ द कंट्री यानी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को फ़ोन करके उन्होंने बताया कि आप ये जो युद्ध चल रहा है वो रुकाइए, और वो 22,000 लोगों को इंडिया में लाया। आने के बाद मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, 22,000 में से 20,000 ये मेडिकल स्टूडेंट्स थे, आप जो अंडर ग्रेजुएट करने के लिए, डॉक्टरी सीखने के लिए उधर गए थे। तो ये सब देख के हमारे लोग बाहर जाके मेडिकल एजुकेशन ले रहे, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, सभी को मेडिकल एजुकेशन यही मिलना चाहिए। इसीलिए मेडिकल कॉलेज नए नए खुले हैं, और मुझे बताने को हर्ष होता है कि 2014 में सिर्फ 58,000 मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 98,000 यानी 40,000 नए फर्स्ट MBBS को एडमिशन मिलता है। तो अराउंड 80 to 85% हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। उतना ही नहीं, आप लोगों ने MBBS किया। अभी MBBS उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अभी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी निकली है। लोगों को नया नया नॉलेज भी मिलना चाहिए। तो MBBS को अगर समझो देहात में भी कोई, अगर तालुका लेवल में भी कोई MBBS है तो उसको पेशेंट भी आते थे और प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी। लेकिन अभी परिस्थिति अलग है। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लोग जाते हैं क्योंकि उतना नॉलेज बढ़ा है, उतना रिसर्च हुआ है, और वो रिसर्च हमारे भारत देश में भी आना चाहिए। इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस भी बढ़े हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट की जगह भी बढ़े हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की जगह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से डबल हो चुकी है। अभी मैं आपके ऊपर आता हूँ, आप लोगों ने भी MBBS किया है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी MBBS किया है, और इंस्टीट्यूशन में MBBS करने के बाद आपने अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ के, चाहे वो
अलग अलग स्टेट्स में हो, चाहे महाराष्ट्र में तो है, महाराष्ट्र में CPS कॉलेज रिकॉग्नाइज है, वैसा गुजरात में, गुजरात इज अ सेकंड स्टेट वेयर द CPS इज रिकॉग्नाइज बाय ऑनरेबल देन जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके माध्यम से उधर भी CPS रिकॉग्नाइज हो गया। तो गुजरात में भी CPS का कोर्स चलता है और बाकी 11 राज्यों में CPS का कोर्स चलता है और 11 राज्यों में CPS रिकॉग्नाइज है। तो ये 11 राज्यों में रिकॉग्नाइज होने के बाद हमें पता है अभी तक भारत देश एक ग्रामीण क्षेत्र में, अभी तक भी भारत 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इन द रूरल एरिया और रूरल डेवलपमेंट इज अ जॉब ऑफ एवरीवन। तो हमें रूरल एरिया में अगर मेडिकल फैसिलिटी देना है तो MBBS के बाद जो MS हो, MD हो, FCPS हो, DGO हो, जो आपके माध्यम से, जो आपके माध्यम से किसने DGO का डिप्लोमा लिया होगा, किसने FCPS सर्जरी भी किया होगा, FCPS मेडिसिन भी किया होगा, अलग अलग डिप्लोमा या FCPS जो किए होंगे, तो आप लोगों को शहर में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का डिमांड देहात में भी, देहात बोल तो नॉट ओनली इन द रूरल बट सेमी अर्बन यू कैन से, तालुका प्लेस, बड़े बड़े शहर में भी, तो मीडियम टाइप ऑफ शहर में आपको बहुत ही स्कोप है। मैं बताना चाहता हूँ, अब कोविड के टाइम, कोविड-19 में जो कोविड हो गया, कोविड आप सभी को पता है कोविड क्या है इसकी डिटेल में नहीं जान सकता, लेकिन कोविड के वक्त प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से फैसिलिटीज़ इधर आ गए, पूरे स्टेट में आए, उसी टाइम मैं जिस शहर से आता हूँ संभाजी नगर में मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम चल रहा था, सिविल में अच्छा काम चल रहा था, लेकिन तालुका लेवल पे इवन एनेस्थेटिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने बोल तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से यानी दिल्ली से जो वेंटिलेटर्स आए थे, वो वेंटिलेटर्स मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल में पड़े थे। हम तालुका लेवल पे नहीं ले जा सके क्योंकि वहाँ एनेस्थेटिस्ट नहीं था, वहाँ फिजिशियन नहीं था, और जो पेशेंट जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी वो उधर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती थी, और मेडिकल कॉलेज में बेड्स मिलते नहीं थे, सिविल हॉस्पिटल में बेड्स मिलते नहीं थे। इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो डिप्लोमा लिया है, जिन्होंने फेलोशिप लिया है, आपकी बहुत ही ज़रूरत अभी भी एज ए डॉक्टर आपकी ज़रूरत है। और जब आप ओथ लेते हैं तो मेडिकल इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इतना अच्छा प्रोफेशन कौन सा भी नहीं है, क्योंकि हम बोलते ना, हम तो हमारी माध्यम से लोगों को मदद कर सकते हैं, जान बचाना सकते हैं, तो और जान बचाने के बाद आज पेशेंट अच्छा होने के बाद पैसे भी मिलते हैं, तो दोनों चीज़ होती है, आपके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है और दो पैसा भी मिल रहा है। लेकिन ये बताते समय मैं बताऊंगा कि हम अच्छा काम करते गए तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। ऐसा भी आपके माध्यम से नहीं होना चाहिए कि कोई पेशेंट आ गया, पहले पैसा भरो बाद में हम काम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पेशेंट ट्रीट करो, पहले पेशेंट अच्छा करो और बाद में पैसा जो कुछ होगा वो दे देंगे। और समझो द पे समझो, अगर इफ दे आर अनेबल टू पे योर बिल देन यू हैव टू फॉरगेट, थोड़ा कंसेशन भी देना चाहिए, बिकॉज यू शुड हैव अ सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव सेव्ड अ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों से ही लेना चाहिए, और मुझे पता है कि हम पूरे इंडियन है और इंडियन को चैरिटी करना, हाँ, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, भारतीय की संस्कृति है कि लोगों को मदद करना। तो आपके फ्यूचर में अगर काम कर रहे तो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो पैसा ही मिलेगा। कुछ गरीब लोगों को मदद ही करना है, या हमारी संस्कृति हमें संभालना है। और ये करते समय जैसे हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने बताया कि यू आर ऑल द टाइम स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। और मेडिकल में इनोवेशन तो बहुत हो रहे हैं,
आज मैं समझो आई वॉज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग 81, 82, 83 मीन्स 40 ईयर्स बैक आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ KEM। अगर उसी टाइम मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर महेंद्रकर, मैं जब आया तो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन बोले तो हमें इतना ही बताया था कि अगर ब्लैक स्पॉट दिखा तो दैट इज़ ए लिक्विड। सोनोग्राफी मशीन भी नहीं थी यहाँ। जब मैं औरंगाबाद से MS किया तो सोनोग्राफी वॉज नॉट अवेलेबल उधर। तो इधर आने के बाद हमें पता चला कि सोनोग्राफी हमें देखने को मिली। तो सोनोग्राफी समझो तो ये इनोवेशन होगा। अभी सोनोग्राफी से कहीं गुना हम आगे गए, अभी कहीं गुना आगे गए हैं, कहीं इतना रिसर्च हो चुका है। और रिसर्च होने के बाद मैं आपको इतना ही संदेश इस कॉन्वोकेशन के माध्यम से देता हूँ, यू ट्राई टू बी अ स्टूडेंट ऑल द टाइम ड्यूरिंग योर लाइफ। आपने जो स्पेशलिटी होंगी, समझो आपकी DA एनेस्थीसिया की स्पेशलिटी होंगी, आपकी DGO की यानी गायनी की स्पेशलिटी होंगी, आप FCPS यानी मेडिसिन में होंगे, तो वहाँ के जो कुछ जर्नल्स है तो जर्नल के आप मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेके जर्नल पढ़ते रहिए। जो कुछ इनोवेशन हो रहा है वो इनोवेशन आपको पता चलेगा। और आजकल तो पर्टिकुलरली आप में से जो सर्जन होंगे तो रॉबर्ट सर्जरी वो भी चल रही है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो भी चल रही है। तो बीच में जो वर्कशॉप होते हैं वो वर्कशॉप भी आपको अटेंड करना है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप अभी आज आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको मिल रही है। तो ये डिग्री मिले इसका मतलब ऐसा नहीं, तो आपको फ्यूचर में भी आपका नॉलेज अपडेट रहना चाहिए। आपको रिसर्च नया का क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए। इसीलिए जो आपके शहर, आपके नज़दीक वाले शहर में जो कुछ मेडिकल के जो वर्कशॉप होंगे, मेडिकल की जो कॉन्फ्रेंस होगी, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आपको अपडेट रखिए, तो ही आपके माध्यम से अच्छी तरह से सेवा हो सकती है। मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं फाइनेंस में काम करता हूँ उनके नेतृत्व में। अगर हम हेल्थ का बजट देखें तो पहले 2014 में हेल्थ का बजट 30,000 या 35,000 करोड़ था, तो ये अभी 7 गुना बढ़ गया है और इट इज़ मोर दैन 150 लाख करोड़ से ऊपर है। तो इतना हेल्थ का बजट बढ़ाया है। हेल्थ में इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, हेल्थ में हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और ये पर्टिकुलरली जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, तो ये शहर का तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि पूरे देश के जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो तो यहाँ होती है, ट्रीटमेंट यहाँ अच्छी मिलती है। उतना ही नहीं तो पूरे भारत बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, पर्टिकुलरली दुबई, और यहाँ ऑपरेशन करके जाते हैं। तो ये मुंबई ये बहुत ही अच्छा शहर है हेल्थ के इसमें से, जो अच्छे काम इधर होते हैं। मैं इस वक्त में बताना चाहता हूँ कि ये बड़े लोगों की, बड़े शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत तो सही मायने में अभी भी ये रूरल भारत यानी ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें एक को मैं बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत स्कीम। जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो अब उन्होंने सिर्फ रजिस्टर्ड करे तो 5 लाख तक ट्रीटमेंट मिल सकती है। 5 लाख में फ्री ट्रीटमेंट भी मिल सकती है। तो आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो और जिस गांव में काम कर रहे हैं, तो उस गांव में जो गरीब लोग हैं वो आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड कैसा हो, इसके ऊपर भी आप सभी को देखना है। और मैं बताना चाहता हूं कि जहां हमें अल्टीमेटली, आज आप नए समझो, यू आर यंग, यू वांट टू अर्न फॉर योर फैमिली, यू वांट टू अर्न फॉर योर पेरेंट्स, बताइए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ सभी की लाइफ में है, जो पीस ऑफ माइंड। आपको शांति कैसी मिलेगी? आप डॉक्टर हैं, आपको तो अर्निंग होने वाली है, लेकिन आपको सभी
अगर शांति हो तो जब एक आधा पेशेंट अगर सीरियस आपके पास आया, आपके माध्यम से समझो जो जो रिलेटिव है, तो जब आए, जब सीरियस पेशेंट था और जब वो अच्छा होके जब बाहर से जाता है तो आपको उनके सब रिलेटिव आपको आशीर्वाद देके जाते हैं और वो दैट इज़ अ रियल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मुझे मैं तो पीडियाट्रिक सर्जन था, तो मैं बताना चाहता हूँ, तो कभी कभी तो ऐसे लोग रोते आते थे कि साहब हमारा बच्चा बचाओ, इतना सीरियस बच्चा लेके आते थे। और जब वो पेशेंट का ऑपरेशन होता था, ऑपरेशन होने के बाद जब वो हंसते वो बच्चा जाता था, तो उनके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली पेरेंट्स के मुंह पे जो सेटिस्फेक्शन है, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो आपको मिल सकता है। तो मैं इस कॉन्वोकेशन के माध्यम से आप सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं और आपके लाइफ के लिए मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आप आपके लाइफ में यशस्वी हो, आपके जो कुछ एम्स है उसमें आप सक्सेस हो, और उतना ही नहीं तो एक अच्छे सिटीजन्स बोल के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत देश को विश्व गुरु बनाना, भारत की संस्कृति पूरे दुनिया में जाना। आप सभी ने कल देखा होगा, कल प्रधानमंत्री जी फ्रांस में गए, फ्रांस में सभी भारतीयों को इकट्ठा करके संबोधित किया। कुछ 1 महीना 15 दिन पहले अमेरिका गए थे, तो जहाँ गए वो भारतीयों को मिलते हैं। हमें भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में जो हमारा सपना है 2047 में भारत एक पूरे दुनिया में सबसे आगे रहेगा, और उसी के सिल्लेदार उसी टाइम आप भी रहेंगे, और एक भारत को उसमें अच्छा बनाने में आपका भी सहयोग रहेगा। आप डॉक्टर बोल के एक भारत के एक अच्छे नागरिक बोल के अच्छा काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सभी का आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, और अभिनंदन करके अगले आपके प्रोफेशन के लिए आपको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुझे पता है कि जब डॉक्टर महेंद्रकर ने ये चार्ज लिया था एज ए प्रेसिडेंट, सिर्फ 300 लोगों को एडमिशन मिलता था, 300। अभी 2000 जनों को एडमिशन मिलता है, यानी 2000 डॉक्टर्स आर गेटिंग पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, it's a very big thing. It is achievement from this all the management trustee under the leadership of Dr. Mahindrakar, they have achieved, and with this I expect a very good work from them also. Whatever the problems from state government or central government, will help them to solve the difficulties. And again I congratulate everybody who are attending this convocation in this hall and online. Some doctors are attending this convocation, so I congratulate them. I give them a best luck wishes to them. Thank you very much. Thank you so much, sir.